Hello students, we are continuing holding company accounts. So in this lecture we will discuss how to prepare a consolidated cash flow statement. So let us see what are the basic concepts in this case. So when we prepare a consolidated cash flow statement, so there are some mutual transactions in between holding company and subsidiary company. So these mutual transactions are to be eliminated. It means when we prepare consolidated cash flow, mutual transactions to be eliminated. So what can be mutual transactions? Like there can be sale of goods so by one company to other company. So how it will affect? So when a company is selling goods, it will make a profit. So it will include in profit of our seller company, and the company which is purchasing these goods, so its cost will increase, so it will reduce its profit. So it means we have to make adjustment in profit. So these are to be adjusted in profit. Because sales are credit item, purchases are debit item. And similarly, sometimes what happens, one company provides services to other company. So in this case, one company will charge fees from other company. It means one company provides services, so there will be some fees, and it will become income of one company. So this is income of one company, and it is expense of other company. So it will also affect their profits. It means we have to reduce income and we have to add back as expense. क्योंकि जब आप म्यूचुअल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जिसने इनकम चार्ज की है तो उसके प्रॉफिट को रिड्यूस कीजिए और जिसकी बुक्स में एक्सपेंस है उसका प्रॉफिट आप इंक्रीज कीजिए सो दैट दिस इफेक्ट कीजिए एलिमिनेटेड अनदर कैन बी so when one company, in case of a holding company, it has a shares of subsidiary company. So holding company receives a dividend. Holding is H. So it receives a dividend from a subsidiary company. This is also to be eliminated. So when H is receiving dividend, so this is your investment activity. So this is your investment activity for a holding company. And when subsidiary company paying dividend, this is financing activity for subsidiary company. So dividend paid, so is your financing activity. उसमें इसको आप एलिमिनेट कीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से और इसको आप एलिमिनेट कीजिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से. Similarly, one company may have debentures of other company. So in that case, you are given one company holds debentures of other company. उस केस में भी है एक कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर by one company and interest is received by other company. It means interest is paid. This will be financing activity. इसको आप eliminate कीजिए financing activity में. And interest received is investment activity for a receiver company. तो इसको आपने eliminate करना है from investment activity. उस तरीके से जब हम कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जो भी आपके म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही हैं मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही हैं उन सबको आपने एलिमिनेट कर देना है एंड देन वी गेट टू कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसका जो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. So let us see example number 17. दिस इज बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें आप देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मेंशन की है. Following particulars are given for a parent company which is X Limited and the subsidiary company S Limited for the year ending on 31st March 2023. So X Limited और S Limited आपको डाटा दिया है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, taxes paid in current year, depreciation charge on assets, interim dividend paid, increase or decrease in working capital, sale of property, plant and equipment, and or its purchase,
debentures redeemed, shares issued, interest paid on debentures, cash and cash equivalents in the beginning of year, cash and cash equivalent at the end of year. तो एक्ट इसका आपको रखा गया है. H had 80% equity share capital of S Limited. H has credited the dividends received from S Limited to its profit and loss account. कुछ मीन्स एच के पास देखो 80% शेयर्स हैं सब्सिडरी कंपनी के, 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, और ये मेंशन किया है कि एस ने जो भी डिविडेंड पे किया है वो एच को रिसीव हो गया और उसने अपने पी&एल में क्रेडिट कर दिया है. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच. अब देखो एस ने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दीज आर पेड these are paid by S to H company. So this amount is rupees 5 lakh and this is as consultation fees paid rupees 5 lakh. Which means ये H की इनकम बन जाएगी, उसको कंसल्टेशन फीस रिसीव हो रही है और ये S का एक्सपेंस बन जाएगा. तो ये कॉमन ट्रांजेक्शन है, इसको एलिमिनेट करेंगे. फर्दर आपको ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ H इंक्लूड 10 lakhs पेड टू B एज टू कमीशन. तो एक H ने सेलिंग कमीशन पे की है. So selling the commission, this is paid to S company and the amount is rupees 10 lakhs. तो इट मीन्स ये एच का एक्सपेंस बन गया है और एस की इनकम बन जाएगी. इसको भी हमने एलिमिनेट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ एच. तो आपको कंबाइंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है. तो लेट अस शो. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो रुपीज देखो आपके चल रहे हैं लैक्स में, रुपीज इन लैक्स. तो आपने ना इसमें देखो जो डिफरेंट कॉलम्स आपको शो करनी है. नंबर 1 इज पर्टिकुलर्स. अब आप शो कीजिए एक को एच लिमिटेड का डाटा, एच लिमिटेड, और एक आप शो कीजिए एस लिमिटेड, और एक हम शो करेंगे कंसोलिडेटेड ऑफ एच एंड एस, दोनों का कंबाइंड. तो फर्स्ट आइटम है हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है, बट ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. उसके लिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले से ही मेंशन किया है. कुछ मीन्स इसमें टैक्स हमें ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है. सो यू टेक पीबीटी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 50 एंड 30, टोटल इज 80. अब जो आपकी कॉमन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं जैसे सेलिंग कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, इनको आप कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लीजिए. तो लेट अस सी ऐड एंड लेस. अब देखो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो एस ने पे किए हैं, तो वो आप ऐड बैक कीजिए. ये हमने ऐड करने हैं एस के एक्सपेंसेस में क्योंकि ये ऑलरेडी लेस हो चुके हैं. तो आपने मेंशन करना है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय एस टू एच. तो इस मीन्स ये आपके एस के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे 5. बाकी ये इनकम भी है, अब एच की इनकम में से माइनस कर लीजिए. तो हम लेस भी करेंगे इसको, जिसे कंसल्टेंसी फीस, इसका नाम है कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड बाय एच फ्रॉम एस. तो ये एच को रिसीव हो रही है तो आप इसकी इनकम में से माइनस कर लीजिए. कुछ मीन्स आप देखेंगे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो में इसका जो इफेक्ट है वो नील हो जाएगा, पर हमें शो करना है डिस्क्लोजर पर्पज के लिए. अब देखिए सेलिंग कमीशन एच ने पे की है, ये एच के प्रॉफिट में से माइनस हो गई है, तो उसको ऐड बैक करते हैं. तो ऐड सेल्स कमीशन विच इज पेड बाय एच, और एच ने देखो पे किया एस को. तो किसी म्यूचुअल ट्रांजेक्शन ऑफ 10 lakhs ये भी ऐड बैक हो जाएगी. एंड दिस इज रिसीव्ड बाय एस आल्सो, तो एस की इनकम में इंक्लूड है, उसमें से कीजिए माइनस. दिस इज सेल कमीशन विच इज रिसीव्ड बाय एस फ्रॉम एच, ये आपकी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्योंकि हेड हमारा सेम ही है, तो ये एच के लिए भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और एस के लिए भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल. तो नाउ यू गेट व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर एडजस्टिंग म्यूचुअल ट्रांजेक्शन. ये आप देखोगे प्रॉफिट आ जाएगा आपका बिफोर टैक्स आफ्टर म्यूचुअल ट्रांजेक्शन से. So you can write to PBT. So after mutual adjustments, तो दिस इज कमिंग सेम. तो ये कोई इंडिविजुअल है, इसका सेम है 50-30 एंड दिस इज आल्सो सेम टोटल 80.
तो मेन जो डिफरेंस आपको मिलेगा जब डिविडेंड पे किया है एस ने, वो डिविडेंड जो है एस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, एच की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेटा इज ऑफ एच कंपनी, एस कंपनी एंड कंसोलिडेटेड। रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। तो आपका चल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो वी गेट पीबीटी। सो आफ्टर म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स, जिसे कमिंग 50, सो 30 एंड 80। अब आप देखिए इसमें प्रॉफिट में अपने कौन कौन से आइटम्स हैं जो और एडजस्ट करनी है। आपको जो को मेंशन किया डेप्रिसिएशन चार्ज की है आपने, और आपका है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो एड बैक हो जाएगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। फिर आपको मेंशन किया है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड हो जाएगा और लेस हो जाएगा आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन देखो मेंशन किया है हमें दोनों के है 20 एंड 15, टोटल ये 35। फिर आपको मेंशन किया वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है 5 एस के केस में, तो एस में ऐड कीजिए आप 5, और एच के केस में इंक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में 10, ये आपका माइनस हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज अवर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एंड दिस इज बिफोर टैक्स। तो टैक्स अभी आपने एडजस्ट करने हैं, तो दिस इज कमिंग 60 एंड 50, टोटल इज दिस इज 5 एंड दिस इज 10, ये सेम है, 5 ऐड हो जाएगा 10 माइनस, देन इट इज अवर 110। अब इसमें से आपको माइनस करना है टैक्स, लेस टैक्स इज पेड, ये आपको मेंशन किए हैं दोनों के 10 एंड 5, so total is 15. So this will be a cash flow from operating activities. So this we are getting first item. This is our cash flow from operating activity. So this is 50, 45 and total is 95. Now let us see second item is cash flow from investment activity. इसलिए देखो आपको आइटम्स मेंशन की हैं, सेल ऑफ पीपीई, परचेज ऑफ पीपीई, दो ही आइटम्स हैं आपकी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें एक और आइटम आएगी, एस ने डिविडेंड पे किया है और वो आपको रिसीव हुआ है एच को, और उसने अपने P&L में क्रेडिट कर दिया है। इसमें जो डिविडेंड रिसीव है वो आपकी मानी जाएगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सो डिविडेंड received by H from S कंपनी। तो अब देखिए एस ने कितना डिविडेंड पे किया है, टोटल डिविडेंड पे है एस का 10, तो 10 में से एस के पास जो शेयर्स हैं वो हैं 80%, सो 8 इज रिसीव्ड बाय एच कंपनी। सो लेट अस सी सेल ऑफ पीपी है देखो आपका 30, परचेज ऑफ पीपी दिस इज इन केस ऑफ एस लिमिटेड, दिस इज 10 नेगेटिव, डिविडेंड रिसीव्ड इज 8। ये टोटल एक्टिविटी बन जाएगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फॉर एच एंड एस। तो एच का देखो टोटल आ रहा है 38 एंड दिस इज 10 नेगेटिव। जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो वी विल शो 30, सो 10 इज नेगेटिव, डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है। तो ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ है ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, तो उसको आप एलिमिनेट भी कर लीजिए। तो आपने यहीं से माइनस करने हैं लेस जिस डिविडेंड रिसीव्ड from S, this is your mutual transaction. So this will be eliminated in consolidated cash flow statement। तो एक यहाँ से माइनस कर लीजिए आप, राइट। क्योंकि जब सेपरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तब को एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इनकम मानी जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। बट जब आप कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो ये एस ने पे किया है एच को, तो एच की इनकम में से आपको एलिमिनेट करना है। सो नेट इज नाउ 20। अब ये इससे मैच नहीं करेगा, 38 माइनस 10 ये बन रहा है आपका 20, क्योंकि इसका डिफरेंस आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट लेट अस शो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिस इज नंबर सी आइटम। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें देखो मेंशन किया है आपको इशू ऑफ शेयर्स हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है इन केस ऑफ एच कंपनी, डिबेंचर्स आपके रिडीम हो रहे हैं, दिस इज 410
10 is negative. Issue of shares. So in case of S company, shares are issued for 20. Then it is dividends paid. Actually में देखो डिविडेंड पे किया है. सो इंटरम डिविडेंड पे कीजिए 15 and 10. अब इस केस में देखो जब एस कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ये एस को रिसीव हो रहा है, इट मीन गेट म्यूचुअल, तो वो आप लेस कीजिए, लेस म्यूचुअल डिविडेंड्स पेड. But this will be subtracted only in a consolidated cash flow statement. तो उसका टोटल कीजिए 10 नेगेटिव, जैसे कि 20, जैसे टोटल 25. इसमें से कैंसिल करना है आपने, तो इस 10 में से 80% एच इज रिसीव बाय एच जो आपने एलिमिनेट किया था, इसको यहाँ से भी एलिमिनेट कर लीजिए. इट मीन्स ये हम माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा आपका. फिर एक आपको मेंशन किया और आइटम डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, this is given interest on debenture is 20 and 10. This is also negative activity. Total is 30. So this will get a cash flow from financing activity. So this is coming negative 25 and 20. 45 is negative. This is 20, 20. This is 0. So total you can see. So this one is our 25, this is 30, 25, 55 and this 65. 65 minus 20, 45 negative, but 8 is plus. This is 37 negative. Now you can calculate what is total cash flow. देखो आपके पास तीनों आइटम्स आ गई. ये थी हमारी फर्स्ट आइटम ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जिसे जो फाइनेंसिंग. अब तीनों को ऐड करते हैं कि जिसे का नंबर डी आइटम, जिसे नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग करंट ईयर, जिसे जो ए प्लस बी प्लस सी. तो फर्स्ट लेटर से 50 है, 38 है और माइनस करना है 45. तो 50 माइनस 45, 5 प्लस 38, तो जिसे कमिंग 43. यानी एस के केस में देखिए आप, जिसे 0, 45 माइनस 10, जिसे 35. कंसोलिडेटेड में आपका बनना चाहिए जिसे 78. तो यू कैन वेरीफाई. 95 है प्लस 20 है, जिसे जो 105, उसमें से माइनस कीजिए आप 37, तो जिसे आल्सो बिकमिंग 78. तो आपका ये मैच हो गया है ये. अब आपको ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड जो कैश इक्विवेलेंट. ये आपको मेंशन किए हैं दोनों कंपनी से. एच का है 10 एंड 5, एच इज 10, एस इज 5, टोटल इज 15. सो दिस विल बी इक्वल टू, this will be equal to closing cash and cash equivalent. This is 53, this is 40 and this is 93. तो इट मीन्स लास्ट में जाके आपका जो है टोटल मैच हो जाएगा. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आफ्टर एलिमिनेटिंग म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स. This video concludes the topic of holding company accounts. So far we have discussed the following topics. Number 1, basic concepts of capital and revenue profits, cost of control, minority interest and pro forma of consolidated balance sheet. Second, adjustment of revaluation of assets. Third, adjustment of dividends paid by subsidiary company. Fourth, adjustment of bonus shares issued by subsidiary company and fictitious and preference shares of subsidiary company. Fifth, adjustment of abnormal loss incurred by subsidiary company. Sixth, adjustments related to mutual owings. Seventh, adjustments of negative minority interest. Eighth, step acquisition, which means holding company acquires shares of subsidiary company in different stages. Ninth, different reporting dates of balance sheets of holding and subsidiary companies. 10th, uniform accounting policy, where we discussed preparation of revised balance sheet of subsidiary company as per accounting policy followed by holding company. 11th, we did preparation of consolidated profit and loss account. 12th, preparation of consolidated cash flow statement. In further lectures, we will discuss examination problems of holding company accounts. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स आल्सो. थैंक यू.